Hello and welcome. Welcome to the sixth learning session of chapter number 8 of Science 1, which is metallurgy. Before we actually start with our learning session, I just wanted to share that today's learning session is going to be a little bit challenging. There are many small things that you need to remember, and there are long processes that you need to memorize. Okay, so it can seem a little challenging, and it's okay if you don't understand the entire thing in the first go, but don't leave it in option. Okay, just because you don't understand it in the first attempt, don't just leave it in the leave it in option. This chapter metallurgy has a lot of weightage in board exam, and whatever topics that we're going to learn today, they are especially important from board exam point of view. Very often board asks question based on these topics. Okay, so it's okay if you don't understand it completely in the first go. Maybe try watching this video again. You can try reading the textbook again. You can try watching some other videos on YouTube on the same topic. You can take your friend's help, or you can just contact me personally. Okay. So yeah, I just wanted to begin with sharing this part. Okay. So let us begin. So far in this chapter, we have seen physical properties of metals and nonmetals. We saw chemical properties through reactions of metals and nonmetals, and we have seen ionic compounds, which are compounds that are found by permanent transfer of electrons, and what are the properties of ionic compounds. In our last learning session, we started looking at basic principles of metallurgy, right? So there were three basic principles: concentration of ores, extraction of metals, and refining of metals. So in the last learning session, we had looked at the first principle, which was concentration of ores, and within that we had looked at separation based on gravitation, which had Wilfy table method and hydraulic separation method. We saw magnetic separation method, froth flotation method, and leaching. Okay, we're going to use leaching again in today's learning session as well. So these are whatever is written in green, we have already covered in our last learning session. Today, we're going to look at extraction of metal. So within extraction of metals also, there are these subtopics in it. Okay, so extraction of highly reactive metals, extraction of moderately reactive metals, and extraction of less reactive metals. And in between, you also have a topic which is extraction of aluminium. So how do we extract aluminium from ore to the metal? We are going to see the entire process, and this is a long process I was talking about earlier. Okay, so it's a very long process. You need to remember many small things, but it is also important from board's point of view, especially this Bayes process, etc. Bayes process, electrolytic reduction, all these are very important topics from board point of view. Okay, but I'll try my best to make it as simple as possible. Okay, again, even in extraction of metals, we're not going to look at each and everything today. We're only going to look at extraction of highly reactive metals and extraction of aluminium. Okay, the remaining two we'll see in the next learning session. So our objective for today is going to be students will be able to explain extraction of aluminium using appropriate diagrams and reactions. So when I explain you all the process of extraction of aluminium, there are going to be many diagrams in between. There are going to be many chemical reactions in between. So you should be able to explain from start to finish how is aluminium extracted and give appropriate diagrams and chemical reactions wherever necessary. Okay, so that's your learning objective for today, that you should be able to do by the end of today's learning session. Okay, so before beginning the learning session, because it's a chemistry chapter, I'm going to again remind you that you need to by heart this particular table. Unless and until you by heart this table, any chemistry chapter is going to be will seem difficult to you, and especially today's learning session, you're going to need many of these radicals. You will need radical of sodium 1+, you'll need radical of magnesium 2+, calcium 2+, ferric you will need Fe 3+, chloride you will need Cl 1-, oxide you will need O 2-, so on and so forth. So many radicals you will need in today's learning session to understand it better. Okay, so let us begin this learning session with a can you recall type of question given on page number 102. What is the electronic definition of oxidation and reduction? We know the simple definition, which is oxygen wala definition, right? Combining with oxygen is oxidation, losing oxygen is reduction, right? Combining with oxygen is oxidation, losing oxygen is reduction. Oxidation and reduction are opposites of each other, but ये हो गया oxygen wala definition. What is the electronic definition? Okay, I think I shared this in one or two, either the previous or the third learning session, either of the two. What is the electronic definition of oxidation and reduction? Okay, so if you remember, try to write it by yourself. I'll wait for 5 seconds for you to pause the video, try to recall,
what is the electronic definition of oxidation and reduction. Okay, 5 seconds are up. I hope you're ready with your answers in your notebook. If you haven't been able to recall it, here is the answer. So oxidation is the process in which a substance loses electrons and reduction is a process in which substance gains electrons. Okay, अगर electrons चले गए तो हम उसको oxidation बोलेंगे, electrons add हो गए, gain हो गए तो उसको reduction बोलेंगे. Oxidation and reduction are opposites of each other and we're going to need these definitions in today's learning session. Okay. So let us begin with extraction of metals. During the extraction of metals from their ores, metal is obtained from the cation of metal. You remember what cation is? Cation हमने कैसे याद किया था? Cation is either positively or negatively charged atom. Atom neutral होता है, उसमें ना positive charge है ना negative charge है, neutral है, zero charge है. So cation क्या होता है? या तो positively charged ion होगा या फिर negatively charged ion. तो उसको याद कैसे किया था हमने? अगर cat आजू बाजू होगी then we'll feel positive. इसका मतलब cation मतलब positive. Okay. So metal is obtained from the cation of metal. Metal को generally cations में से निकालते हैं. Okay. पहले metal का cation बनता है और उस cation में से metal मिल जाता है. In this process, the metal cation is to be reduced. उस cation को reduce करना पड़ता है. क्यों? देखो तुम्हें neutral metal चाहिए, right? तुम्हें neutral metal चाहिए. But already कैसा होगा वो cation में होगा. Cation मतलब positively charged है. तो पॉजिटिवली चार्ज को तुम्हें जीरो चार्ज लेके आना है, तुम्हें नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा. नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा, कैसे दोगे? उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे. तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पूरा कैंसिल होके जीरो चार्ज हो जाएगा. जो तुम्हें चाहिए, न्यूट्रल मेटल चाहिए तुम्हें. सो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे. इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने को हमने क्या बोला था? रिडक्शन. लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन. सो कैटायन को न्यूट्रल करने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, यानी रिड्यूस करना पड़ेगा तुम्हें मेटल कैटायन को. ओके. हाउ टू ब्रिंग अबाउट द रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिएक्टिविटी? कोई भी मेटल कितना इजीली रिएक्ट कर सकता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी. कितना इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, फिर कितना मुश्किल होता है उसको रिएक्ट करने के लिए. we have already learned about the reactivity series of metal. So here you can see the reactivity series. जो टॉप में होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं. जो नीचे होते हैं वो इजीली रिएक्ट नहीं करते, हाईली अनरिएक्टिव होते हैं. ओके. सो पोटेशियम सोडियम बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं, गोल्ड इजीली रिएक्ट नहीं करता. तो अभी इसमें तुम्हें पता है मेटल्स है, मेटल्स का जनरली कैटायन फॉर्म होगा, कैटायन में से मेटल निकालना पड़ेगा, यानी इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. उसको रिड्यूस कैसे करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी पे. ये बहुत ऊपर है या बहुत नीचे, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें से मेटल हम कैसे निकालेंगे रिड्यूस करके. ओके. Reactive metals have large capacity to form cations by losing the electrons in their outermost shell. So जो highly reactive metals होते हैं वो लोग easily cations form करते हैं. क्यों? क्योंकि उनका लास्ट ऑर्बिट में या तो एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. लास्ट का एक या दो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी होता है, तो बहुत इजीली वो लोग cations बन जाते हैं. इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यानी cation हो जाएगा, बराबर. सो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में से, इसलिए वो बहुत इजीली cations फॉर्म करते हैं. इसलिए क्या बोला? They have large capacity to form cations. बहुत easily cations form कर सकते हैं. कौन? Highly reactive metals, ये ऊपर वाले metals. Highly reactive metals burn by reacting with oxygen from air at room temperature. We have seen, right? Potassium and sodium, इनको तुम हवे में भी रख दो, हवे के कांटेक्ट में लेके आ जाओ. You bring them in contact with air. एयर में जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है. इट स्टार्ट्स बर्निंग इवन एट रूम टेम्परेचर. उसको जलाना भी नहीं पड़ता, अपने आप जलना शुरू हो जाता है. हेंस वी कीप दैट इन केरोसिन ताकि एयर के कांटेक्ट में ना आए, बराबर. Their extraction has to be done by electrolytic reduction. तो ऐसे मेटल्स का अगर तुम्हें एक्सट्रैक्शन करना है, निकालना है, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना. ओके. ऐसे मेटल्स को तुम्हें उसके ओर में से निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो तुम्हें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा. ओके. एंड वी गोइंग टू लुक एट electrolysis in detail in our upcoming slides. So here they have given examples. For example, the metals sodium, calcium and magnesium are obtained by electrolysis of their molten chloride salts. Okay, so बहुत सारी चीजें एक लाइन में. सबसे पहले कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल्स है? सोडियम, कैल्शियम एंड मेटल. ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है. ओके. सो इनको रिड्यूस कैसे करते हैं या फिर इनमें से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? पहले उनके क्लोराइड सॉल्ट्स बनाने पड़ेंगे. ओके. क्लोराइड सॉल्ट्स मतलब क्या? एक मेटल ले लो, उसमें क्लोरीन ऐड कर दो तो क्लोराइड सॉल्ट बन गया. ओके. फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम इज अ मेटल. सोडियम मेटल में क्लोरीन गैस पास कर दो तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, तो सॉल्ट बन जाता है, बराबर. तो क्लोराइड सॉल्ट ले लो,
उसका मोल्टन स्टेट निकालना पड़ेगा, मेल्ट किया हुआ उसका मोल्टन स्टेट, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस? Here is a diagram of electrolysis. Okay, we saw this in detail in one of our previous learning sessions, right? So अगर तुम NaCl डालोगे, सोडियम क्लोराइड डाल दोगे तो डिसोसिएट हो जाएगा. सो Na का Na प्लस बन जाएगा, Cl का Cl माइनस बन जाएगा. ओके, एंड फिर बाद में यहाँ पे तुमने दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए और इलेक्ट्रोड्स के बीच में तुमने बैटरी लगा दिया. तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, सोडियम दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ. इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. ओके, सो अगर सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना है तो तुम्हें उनका क्लोराइड सॉल्ट्स का मोल्टन फॉर्म का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा. ओके, इन दिस प्रोसेस द मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड. अभी कैथोड क्या है? हमें कैटायन पता है, हमें एनायन पता है, बट व्हाट इज कैथोड एंड व्हाट इज एनोड? आई टोल्ड यू देयर आर टू रॉड्स. इन दो रॉड्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड. ये तुम्हारा फर्स्ट इलेक्ट्रोड है और ये तुम्हारा सेकेंड इलेक्ट्रोड है. सो लेट अस लुक एट सोडियम फर्स्ट. सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन. सो कैटायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा दैट इज कैथोड. I'm going to repeat this. सोडियम क्या है? पॉजिटिव. पॉजिटिव यानी कैटायन. कैटायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा उसको हम बोलेंगे कैथोड. सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? नेगेटिव. नेगेटिव है मतलब एनायन. एनायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा उसको बोलेंगे एनोड. ओके, ऑल्सो अभी सोडियम पॉजिटिव है, राइट? पॉजिटिव जिसकी तरफ जा रहा है वो क्या होगा? नेगेटिव. देखो ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है. सो दिस electrode is negative. So positive cation will move towards negative cathode. Similarly, negative anion will move towards positive anode. So generally cation, anion, cathode, anode, इसमें बहुत confusion होता है generally students को. So I've made it simple for you all here in this slide. Okay, so cation क्या? Positively charged. याद कैसे रखा है? cat आजू बाजू होगी, we'll feel positive, and positive means positively charged ion cation. Similarly anion, anion को कैसे याद किया था? Anion sounds like onion. Whenever you cut onion, आंसू आ जाते हैं, and आंसू आ जाते तो we'll feel negative. So anion यानी negative. So cation is positive, anion is negative. Cathode क्या है? Cation जिसकी तरफ जाएगा वो cathode है. Okay, so cations move towards this electrode, and cation positive है तो positive जिसकी तरफ move कर रहा है वो खुद negative होगा. Similarly anode, anion जिसकी तरफ move कर रहा है वो एनोड होगा. सो एनायंस मूव टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड, एंड एनायन नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज जिसकी तरफ मूव कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज होगा. ओके, सो जस्ट कॉपी दिस इन योर नोटबुक एंड you should not feel confused about this, about these four terms. Okay, cation, anion, cathode, anode. Okay, now which was the point that you were looking at? Yes, second point. In this process metal is deposited on the cathode. तो metal क्या है? सोडियम क्लोराइड. इसमें से metal कौन सा? सोडियम. सोडियम इज द मेटल. मेटल किसकी तरफ जा रहा है? कैथोड की तरफ. तो कैथोड की तरफ मेटल डिपॉजिट हो जाता है और एनोड में क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड. ओके, एनोड पे क्लोरीन गैस चला जाएगा और वहां पे क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगा. सो दिस इज योर इलेक्ट्रोलिसिस. एंड नाउ लेट अस लुक एट द रिएक्शन कि एनोड और कैथोड में रिएक्शन कैसे हो रहा है. ओके, सो कैथोड का रिएक्शन पहले देखते हैं. कैथोड क्या है? कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसकी तरफ कैटायन जाएंगे. कैटायन कौन सा होता है? पॉजिटिवली चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज क्या है? सोडियम. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सोडियम का रेडिकल क्या है. सोडियम इज 1+. ओके, तो भी इस ये जो कैटायन है, तुम्हें कैटायन चाहिए क्या? नहीं, तुम्हें वो मेटल चाहिए न्यूट्रल, न्यूट्रल फॉर्म में, यानी चार्ज नहीं होना चाहिए. तो प्लस चार्ज को तुम्हें हटाना है. प्लस चार्ज को हटाना है तो तुम्हें माइनस चार्ज देना पड़ेगा. सो +1 -1 0 हो जाएगा. अभी माइनस चार्ज कैसे दोगे तुम? इलेक्ट्रॉन ऐड करके. सो ये सोडियम +1 आयन में तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो. सो ये +1 -1 कट होके सिर्फ सोडियम बचेगा, नो चार्ज. और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गया Na+ में. इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं. सिमिलरली एनोड, एनोड इज क्या? जहां पे भी एनायंस एनायंस मूव टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड. जिस इलेक्ट्रोड की तरफ एनायंस मूव करेंगे दैट इज एनोड. सो एनोड की तरफ एनायंस मूव करेंगे, एनायन यानी नेगेटिवली चार्ज, यानी क्लोरीन मूव करेगा. ओके, सो क्लोरीन तुमने लिख दिया यहाँ पे. क्लोरीन का रेडिकल क्या है? 1-. ओके, सो यहाँ पे 1- है. अगेन इसको ये जो इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ओके, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो कहीं से तो आएगा, राइट? कहां से आता है वो? क्लोरीन में से आता है इलेक्ट्रॉन. सो क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इट हैज -1 चार्ज, राइट? तो -1 चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देगा. सो क्लोरीन 1- एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देके क्लोरीन बन जाएगा. बट देखो यहाँ पे +1 था तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया,
यहाँ पे अभी -1 है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिए? ये कैसे हो गया? द रीजन इज क्लोरीन इज अ गैस, एंड गैस कभी भी एक एटम अकेला नहीं होता, दो दो एटम साथ में होते हैं. सो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑल दीज गैसेस, हाइड्रोजन विल हैव 2 एटम्स टुगेदर. ओके, तो इसलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन के एनायन लिए. ओके, Cl माइनस के 2 एनायन लिए. सो एक एनायन में से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एनायन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं. और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, Cl माइनस में से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वही सोडियम एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, सो क्लोरीन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो तुम्हें क्या मिल रहा है? क्लोरीन गैस. ओके, Cl2 which has no charge. Okay, neutral. Whenever you lose electrons, देखो क्लोरीन गैस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो जब भी there is a loss of electrons, it is known as oxidation. Okay, I hope this part is clear. Only when this part is clear, you will be able to understand extraction of aluminium completely well. Okay, so those were your reactions at cathode and anode. If this part is clear, then you should be able to answer this use your power, brain power type of question given on page number 103. Write the electrode reaction for electrolysis of molten magnesium chloride and calcium chloride. मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के लिए तुम्हें सेम इलेक्ट्रोड के रिएक्शन लिखने हैं. तो हमने सोडियम क्लोराइड के लिए कैसे एक कैथोड रिएक्शन लिख दिया और एक एनोड रिएक्शन लिख दिया. तो अभी इसको देख के तुम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड के और कैल्शियम क्लोराइड के रिएक्शंस लिख सकते हो क्या? दैट दे आर आस्किंग. सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds फॉर यू टू पॉज द वीडियो, लुक एट हाउ वी हैव रिटन द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस फॉर सोडियम क्लोराइड. उसको देख के मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का लिखने की कोशिश करो खुद से. ओके, आई विल वेट फॉर 5 seconds फॉर यू टू पॉज द वीडियो हियर and do that by yourself. Okay, 5 seconds are up. I hope you pause the video and at least tried. Okay, जब तक तुम try करके गलती नहीं करोगे तब तक वो improve नहीं होगा. So I hope you have paused the video and at least tried to do it. Now let us discuss the correct answers. So first, magnesium chloride का करते हैं. So the first step was to write the molecular formula. सो MgCl2 तुम लोग ने लिखा है कि नहीं ये चेक करो. अगर तुमने MgCl2 यही गलत लिख दिया तो फिर आगे के स्टेप्स गलत हो जाएंगे. और ये ठीक से लिखने के लिए तुम्हें ऑरेंज टेबल बाय हार्ट होना चाहिए. Mg का रेडिकल क्या है? 2+ एंड क्लोरीन का 1-. सो 1- लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है. एंड Mg का 2+ है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Cl2 आ जाएगा. सो MgCl2 विद कैथोड रिएक्शन. कैथोड यानी जिसकी तरफ कैटायन आ रहे हैं, कैटायन यानी पॉजिटिव. पॉजिटिव कौन होगा? मैग्नीशियम, Mg2+. ओके, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है. 2 पॉजिटिव चार्ज को जीरो करने के लिए 2 नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा. 2 नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन. सो Mg2+ plus 2 electrons will give you Mg. इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन. सो कैथोड रिएक्शन हो गया. सिमिलरली एनोड रिएक्शन सेम टू सेम लिखा है जो पिछले वाले में हमने क्लोरीन के लिए लिखा था. सेम 2Cl- = Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन. सेम टू सेम रिएक्शन यहाँ पे लिखा है. ऑक्सीडेशन ये चेंज नहीं होता. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी एनोड रिएक्शन सेम रहेगा. 2Cl- gives you Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं. क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन है. चेंज किया हुआ सिर्फ ये कैथोड रिएक्शन. यहाँ पे Mg2+ था, यहाँ पे Ca2+ हो गया. बाकी सब सेम टू सेम है. ओके, so that's your answer. Just check whether you were able to write the correct reactions for cathode and anode, and if you have made any mistake, correct it. Okay, we'll move ahead now. Now we are beginning with extraction of aluminium. We are done with extraction of highly reactive metals. Now we are starting to look at extraction of aluminium. So aluminium का symbol है Al, उसका color है silver white, उसका atomic number है 13, electronic configuration 2,8,3 and valency is 3. क्योंकि जो last के 3 इलेक्ट्रॉन्स है इजीली वो गिव अप कर सकता है. सो उसका वैलेंसी है 3. ओके, सो सम बेसिक properties of aluminium. Aluminium being reactive metal does not occur in nature in free state. Okay, अगर तुम ऐसे कोई रास्ते पे चल रहे हो तो ऐसे नीचे एल्यूमिनियम का टुकड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें नेचर में. ओके, वो हमेशा इम्प्योरिटीज के साथ में होगा, कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म में होगा. Aluminium is the third highly abundant element in the earth crust after oxygen and silicon. Okay, so हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, ऊपर का हल्का सा छोटा सा लेयर है अर्थ का, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, जिसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं. उसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? सिलिकॉन. सिलिकॉन के बाद सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? एल्यूमिनियम. सो वी हैव लॉट ऑफ एल्यूमिनियम इन आवर अर्थ क्रस्ट. ओके,
एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइड. सो एल्यूमिनियम के ओर का नाम क्या है? बॉक्साइड. ओके, और बॉक्साइड में क्या होता है? Al2O3.NH2O. ओके, एन यानी कुछ भी हो सकता है, N1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डिपेंड्स. ओके, हमेशा सेम नहीं होता. सो Al2O3.NH2O. ओके, bauxite contains 30 to 70% of Al2O3 and the remaining part is gangue. ओके, सो 30 से डिपेंड करता है कि कहां से तुमने वो ओर निकाला है और वो कितना प्योर है. सो 30% से 70% के बीच में Al2O3 हो सकता है, और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो गैंग. गैंग मतलब क्या? इम्प्यूरिटी. ओके, इट इज मेड अप ऑफ सैंड, सिलिका एंड आयन ऑक्साइड एक्सेट्रा. किसकी बात हो रही है? गैंग की. सो गैंग में सैंड होगा. सैंड क्या है? मिट्टी. सिलिका सिलिकॉन का एक कंपाउंड है. आयन ऑक्साइड Fe2O3 एक्सेट्रा, ये सब तुम्हें गैंग में मिलेगा. ओके, so there are two major steps in extraction of aluminium. First is concentration of bauxite ore, जो हमने कल पढ़ा था, राइट. फर्स्ट बेसिक स्टेप क्या होता है? concentration of ore. तो पहले तुम्हें bauxite ore का concentration increase करना पड़ेगा. उसके दो मेथड्स होते हैं, either you use Bayer's method or you use Hall's method. दोनों में से कोई भी मेथड तुम यूज कर सकते हो. ओके, एंड द सेकेंड स्टेप इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, जो आज हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था. वी सॉ, राइट, हाउ वी एक्सट्रैक्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस. तो एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, फिर तुम्हें फाइनली एल्यूमिनियम मिलेगा. सो वी आर गोइंग टू लुक एट दीज टू स्टेप्स इन डिटेल नाउ. ओके, सो लेट अस बिगिन with concentration of bauxite ore. So bauxite is the main ore of aluminium, और इसमें कौन से impurities होते हैं? फर्स्ट इज सिलिका. सिलिका क्या है? SiO2. ओके, SiO2 is silica. Next is ferric oxide Fe2O3. टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2. ये सब impurities present होते हैं बॉक्साइट में. So what are the three impurities present? Silica, ferric oxide and titanium oxide. Next, separation of these impurities is done by leaching process using either Bayer's method or Hall's method. Leaching process याद है? हमने कल के लर्निंग सेशन में पढ़ा था, राइट. द 4 मेथड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ओर. सो उसमें से लीचिंग मेथड लास्ट में पढ़ा था. व्हाट इज लीचिंग मेथड? तुम उस ओर को किसी केमिकल में डाल दो, उस केमिकल में तुम्हारा जो मेटल वाला पार्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसको तुम सेपरेट कर सकते हो. जो मिक्स नहीं हो रहा है उसको बाहर निकाल दो, तुम्हारा इम्प्योरिटी है. दैट इज योर लीचिंग प्रोसेस. बराबर, दैट वी हैड सीन इन आवर लास्ट लर्निंग सेशन. तो तुम्हें लीचिंग प्रोसेस से ये इम्प्योरिटीज बाहर निकालने हैं. और लीचिंग प्रोसेस के दो मेथड्स हैं, बेयर्स मेथड और हॉल्स मेथड. ओके, in both these methods finally the concentrated alumina is obtained by calcination. Okay, what is calcination? Calcination is a heating treatment. Okay, heat treatment को लोग calcination बोलते हैं. So तुम बेयर्स मेथड यूज करो या फिर हॉल मेथड यूज करो, एंड में जो कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना मिलने वाला है उसको तुम कैल्सिनेट करने वाला हो, और फाइनली तुम्हें एल्यूमिनियम या मेटल मिलने वाला है. ओके, so now we'll begin with Bayer's process. So in Bayer's process the ore is first ground in ball mill. Again, what is ball mill? You have seen, right? It's a कंटेनर जिसमें बड़े बड़े बॉल्स होते हैं, स्फीयर्स होते हैं. ओके, मेटल के. तो उसमें तुम अपना ओर डाल दोगे और वो घूमना शुरू हो जाएगा. वो घूमते घूमते वो मेटल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, क्रश कर लेंगे तुम्हारे ओर को, और तुम्हें पाउडर मिल जाएगा. सो फर्स्ट स्टेप इज टू ग्राउंड यानी पाउडर बनाना इन अ बॉल मिल. नेक्स्ट, then it is leached by heating with concentrated solution of caustic soda. What is caustic soda? It's a fancy name for sodium hydroxide. NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है. तो उसका एक फैंसी नेम caustic soda है. ओके, तो उसको हीट करना है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH को. कौन से टेम्परेचर पे? 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस. ओके, वो हाई प्रेशर के अंदर रखना है. और कितने टाइम के लिए रखना है? 2 to 8 आवर्स इन अ डाइजेस्टर. डाइजेस्टर इज नथिंग बट अ कंटेनर. एक कंटेनर जिसमें तुम काफी ज्यादा हीट देते हो, काफी ज्यादा प्रेशर देते हो, उसको हम डाइजेस्टर बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप इन बेयर्स प्रोसेस? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लो और उसको हीट करो अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस पे अंडर हाई प्रेशर. और कितने टाइम के लिए? 2 से 8 घंटे के लिए. ओके, नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? एबल टू रिएक्ट बोथ एज बेस एंड एज एन एसिड. ओके, एम्फोटेरिक मतलब बेस की तरह भी रिएक्शन कर सकता है, एसिड की तरह भी रिएक्शन कर सकता है. इफ यू रिमेंबर व्हाट इज एसिड एंड बेस? एन ऑब्जेक्ट that you put in water gives you H plus is known as acid. An object you put in water gives you OH minus is base. Okay, acid and base are opposites of each other. So aluminium oxide जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है. वो एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है. ओके, so it reacts with aqueous solution of sodium hydroxide to form water soluble sodium aluminum. तो ये क्या रिएक्शन होने वाला है जब तुम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे? सो हियर इज योर
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। ये तुम्हें बॉक्साइट में से मिलेगा Al2O3 प्लस 2H2O, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। इसका पाउडर बनाया तुमने बॉल मिलिंग से, उसको तुमने कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में या फिर NaOH में डाल दिया। ओके, तुम्हें क्या मिलने वाला है? यू गेटिंग वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये तुम्हारा सोडियम एल्यूमिनेट है। NaAlO2 इज योर वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल यानी पानी में मिक्स हो सकता है, तो ये एक्वियस लिख दिया। वाटर सोल्यूबल सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट में मिल जाएगा। ओके, दिस मीन्स दैट बॉक्साइड इज लीच्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ओके, तो तुमने तुम्हारे बॉक्साइड जो था Al2O3.2H2 उसको लीच कर दिया। लीच किया यानी तुमने एक लिक्विड में उसको डिसॉल्व कर दिया। ओके, और क्या मिल गया तुम्हें? सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, ये करके क्या फायदा हुआ? देखो तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास ये था बॉक्साइड, राइट, Al2O3.2H2। इसमें इसको तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्या मिला? NaLO3। कौन सा? NaLO2। कौन सा इजी लग रहा है और कौन सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? ये थोड़ा इजी लग रहा है, राइट। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और थोड़ा सा पानी है, यहाँ पे सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, तीन चीजें आ गई, तो ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हमें उसको प्यूरिफाई करना है, इजी बनाना है, सिर्फ एल्यूमिनियम चाहिए, तो ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड किया। तो क्यों किया हमने ऐसा? The reason is that iron oxide in gangue does not dissolve in aqueous sodium hydroxide. Okay, so जो aluminium था, कौन से तीन impurities थे? There was, let me go back, there was silica, there was ferric oxide and there was titanium oxide। ये तीन थे। अभी इन तीनों में से फेरिक ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होगा, तो फेरिक ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तुम उसको सिर्फ फिल्टर कर दो तो फेरिक ऑक्साइड निकल जाएगा। तो एक इंप्योरिटी तुमने इजीली निकाल ली यूजिंग लीचिंग प्रोसेस। दैट्स व्हाई वी डिड दिस। ओके, सो आयरन ऑक्साइड गैंग में से डिसॉल्व नहीं होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और वो फिल्ट्रेशन से तुम सेपरेट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? सिलिका जो होता है गैंग में, ओके, वो डिसॉल्व हो जाता है, तो तुम्हें सिर्फ सोडियम एल्यूमिनेट नहीं मिला, सोडियम एल्यूमिनेट के साथ उसके अंदर सिलिका भी होगा। ओके, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। और क्या मिलता है तुम्हें? सोडियम सिलिकेट मिल जाता है। तो इसको भी किसी तरह से तुम्हें निकालना पड़ेगा तुम्हारे सोल्यूशन में से। Aqueous sodium aluminate is diluted by putting in water and is cooled to 50 degrees Celsius. This results in precipitation of aluminium hydroxide. Precipitation मतलब याद है? Precipitation यानी पाउडर बन के नीचे सेटल हो जाना, उसको हम precipitation बोलते हैं। We learned this in chapter number 3, chemical reactions and equations। तो precipitation यानी पाउडर बन के वो नीचे सेटल हो जाएगा। कब? जब तुम उसको पानी से रिएक्ट करवाओगे, यू आर पुटिंग इन वाटर, और उसको तुम ठंडा भी कर रहे हो। कौन से टेम्परेचर पे? 50 डिग्री सेल्सियस में। पहले प्रीवियस स्लाइड में हमने जो देखा था 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, बराबर। तो इसको ठंडा करके 50 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ जाओ, पानी ऐड कर दो, तो जो सोडियम एल्यूमिनेट है इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, NaOH हमारे काम का नहीं, इसको इग्नोर कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, AlOH थ्राइस। ओके, सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब जाके तुम्हारा बेयर्स प्रोसेस हो गया। मैंने क्या बोला था? यहाँ पे दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो बेयर्स प्रोसेस यूज करो या फिर तुम हॉल्स प्रोसेस यूज कर सकते हो, राइट। सो बेयर्स प्रोसेस से AlOH3 मिल गया हमें। सिमिलरली हॉल्स प्रोसेस से भी तुम्हें AlOH थ्राइस मिल जाएगा। लेट अस सी उसमें से कैसे आएगा। ओके, तो हॉल्स प्रोसेस में भी फर्स्ट स्टेप सेम है, क्या करना है तुम्हें? पाउडर बनाना है ओर का। ओके, बट सेकेंड स्टेप अलग है। पिछले वाले में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से लीच किया था, बट यहाँ पे it is leached by heating with aqueous sodium carbonate in digester। ओके, सो पिछले वाले में बेयर्स प्रोसेस में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लीच किया था, बट यहाँ पे हम सोडियम कार्बोनेट के साथ लीच करेंगे उसको। ओके, और सोडियम कार्बोनेट के साथ लीच करके हमें क्या मिलने वाला है? सोडियम एल्यूमिनेट। यू कैन सी द रिएक्शन ओवर हियर। सेम चीज है Al2O3.2H2O, बट यहाँ पे NaOH के जगह पे Na2CO3 विच इज योर सोडियम कार्बोनेट। तो इसके साथ रिएक्शन के बाद क्या मिलने वाला है? सेम चीज, NaAlO3 विच इज सोडियम एल्यूमिनेट। अभी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एंड H2 मिलता है, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो। हमारे काम का चीज क्या है? NaL2O3 सोडियम एल्यूमिनेट। और पिछले वाले में हमने क्या किया था? हमने उसको फिर बाद में पानी दे दिया था, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी उसको पानी देंगे। बिफोर दैट द इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आर फिल्टर। ये हम लोग क्यों करते हैं? जो कुछ भी मिक्स नहीं होगा सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको तुम निकाल दोगे। ओके, वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, पाउडर स्टेट में ही रहेगा, उसको तुम निकाल दोगे फिल्ट्रेशन से। जो लिक्विड स्टेट में डिसॉल्व हो गया उसको तुम निकाल दोगे, और वो तुम्हारी काम की चीज है विच इज एल्यूमिनियम, सॉरी सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, सो जो कुछ भी इनसॉल्युबल, जो मिक्स नहीं हुआ
इम्प्यूरिटी उसको तुम फिल्टर करके निकाल दोगे. The filtrate is warmed and neutralized by passing carbon dioxide gas through it. Okay, तो जो तुम्हें फिल्ट्रेट मिला, फिल्ट्रेट मतलब क्या, फिल्टर करने के बाद जो बच गया उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं. ओके, सो फिल्ट्रेट को तुम थोड़ा गर्म कर दोगे और उसको न्यूट्रलाइज करोगे. कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड से. सो इन Bayer's process you only had sodium aluminate plus water, but Hall's process में you have sodium aluminate plus water plus carbon dioxide. यहाँ पे 3 reactants है. Okay, but what you're getting is the same, aluminium hydroxide. Okay, AlOH thrice ये तुम्हें मिल रहा है. This results in the precipitation of aluminium hydroxide. So Bayer's process से भी aluminium hydroxide मिला, Hall's process से भी aluminium hydroxide मिला. End goal was the same for both the process. तुम कोई भी process use कर सकते हो. Okay, now let us move ahead. So हमारा concentration of bauxite ore almost खत्म हो गया. Okay, last process क्या, last step क्या है यहाँ पे? The precipitate of AlOH thrice obtained in both Bayer's and Hall's processes is filtered. बहुत सारे processes यहाँ पे देखो, filtered, washed, dried and then calcined. Okay, calcined मतलब calcinate करना यानी heat करना by heating at 1000 डिग्री सेल्सियस. पहले 150 पे हीट किया था Bayer's प्रोसेस में और फिर बाद में ठंडा किया था 50 डिग्री सेल्सियस में. हॉल में भी थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं उसको, बट अभी उसको कैल्सिनेशन के लिए कौन सा टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं? 1000 डिग्री सेल्सियस. तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको तुम कैल्सिनेट करो 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तुम्हें क्या मिलेगा? एल्यूमिना. व्हाट इज एल्यूमिना? एल्यूमिनियम इज नथिंग बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना बोलते हैं. ओके, सो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा. सो देखो इतना सब हम लोग ने करने के बाद क्या मिला? हमने Al2O3 प्लस 3H2O. तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था? स्टार्टिंग में हमारे पास ये था, राइट, Al2O3 डॉट 2H2O. तो बस ये डॉट H2O को हटाने के लिए ये Al2O3 और H2O ये दोनों को अलग अलग करने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी. तो इतनी मेहनत करने के बाद बेयर्स प्रोसेस या हॉल्स प्रोसेस के बाद क्या हो गया? ये Al2O3 और H2O ये दोनों सेपरेट हो गए. सो दैट्स योर फाइनल प्रोडक्ट. ओके, तो अभी तुम्हें एल्यूमिना पे काम करना है. वाटर को तुम इग्नोर कर सकते हो, भूल सकते हो, बस एल्यूमिनियम में से ऑक्सीजन हटाना है. इजियर सेड देन डन. बोलना काफी आसान है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम निकालना, बट प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है. ओके, सो लेट अस सी द सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर. अभी सेकंड स्टेप क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू बेसिकली सेम इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला है. सोडियम क्लोराइड का जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखा था सेम चीज होने वाला है, बस अभी सोडियम क्लोराइड की जगह पे हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, सो लेट अस सी हाउ दैट इज गोइंग टू हैपन. So in this method, electrolysis of molten mixture of aluminium, जिसका melting point है more than 2000 डिग्री सेल्सियस, is done in a steel tank. तो जो ग्रे कलर का टैंक दिख रहा है that is your steel tank. तो इस स्टील टैंक में हम लोग molten mixture of alumina का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. और ये molten mixture of alumina जो है उसका melting point क्या है? 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है. So बहुत हाई melting point है इसका. तो टैंक हैज अ ग्राफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड. तो ये जो ग्रे कलर का स्टील का टैंक है उसके अंदर ये ब्लैक कलर की चीज दिख रही है. स्टील टैंक के अंदर ब्लैक कलर का चीज दिख रहा है ना तुम्हें कोई? वो क्या है? ग्राफाइट है. ग्राफाइट का लाइनिंग यानी ग्राफाइट का एक लेयर डाल देते हैं. ओके, दिस लाइनिंग डज द वर्क ऑफ द कैथोड. तो ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये तुम्हारा कैथोड है. ओके, पिछले वाले एग्जांपल में दो ही इलेक्ट्रोड्स थे, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव, या फिर एक इलेक्ट्रोड कैथोड दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड. बट यहाँ पे क्या किया? उल्टा किया. वो जो टैंक है उसको ही तुमने इलेक्ट्रोड बना दिया. ओके, तो ये जो 3 रॉड्स है ये तुम्हारे एनोड हो जाएंगे. सो टैंक का जो लाइनिंग है, टैंक का जो ऊपर का लेयर है, दैट इटसेल्फ इज कैथोड, और जो 3 रॉड्स डाले हो तुम्हारे एनोड है. ओके, a set of graphite rods dipped in the molten electrolyte works as anode. तो जो 3 ग्राफाइट के रॉड्स डिप किए हैं उसको हम एनोड मानेंगे, और जो स्टील का ग्राफाइट का लाइनिंग है उसको हम कैथोड मानेंगे. ओके, और बीच में ये देखो यहाँ पे बैटरी डाल दिया. सो बैटरी का लेफ्ट साइड लंबा है, लेफ्ट साइड लंबा यानी ये जो 3 रॉड्स है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी एनोड है. ओके, राइट साइड छोटा डंडा है या फिर छोटी डंडी है, छोटी डंडी यानी नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का. तो ये जो ग्राफाइट का लाइनिंग है तुम्हारे टैंक के ऊपर, दैट इज योर नेगेटिव नेगेटिव पार्ट इज नथिंग बट कैथोड. ओके, नाउ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रायोलाइट which is Na3Al(F6) and fluorspar which is CaF2. These two are added in the mixture to lower its melting point up to 1000 डिग्री सेल्सियस. इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है देखो, 2000 डिग्री सेल्सियस सिर्फ एल्यूमिना का. ओके, Al2O3.
व्हाट इज एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 2000 डिग्री सेल्सियस। उसको कम करना है, जितना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना इजीली हम निकाल पाएंगे मेटल उसमें से। ओके, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए हम दो चीजें ऐड करते हैं, क्या? क्रायोलाइट Na3Al(F6) एंड फ्लोरस्पार, ओके, Ca(F2). ये दोनों को ऐड करने के बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। 2000 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आधा हो गया। तो इससे तुम्हें बहुत कम एनर्जी लगेगा उसको मेल्ट करने के लिए और वो मेटल निकालने के लिए। ओके, सो इफ यू सी यहाँ पे मिक्सचर कौन सा बोला है? एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार का मिक्सचर है। और यहाँ पे नीचे एक आउटलेट है वोल्टन एल्यूमिनियम के लिए, वो देखेंगे वो क्यों है। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे तुम स्विच चालू कर लोगे और बैटरी करंट पास करना शुरू कर देगा तो एल्यूमिनियम कैथोड के पास जाएगा। एल्यूमिनियम का रेडिकल क्या है? 3+। 3+ यानी वो कैटायन है। कैटायन हमेशा किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ। तो कैथोड कहाँ पे तुम्हारा? यहाँ पे जो ग्राफाइट लाइनिंग है तुम्हारे स्टील का, दैट इज योर कैथोड। तो तुम्हारा जो एल्यूमिनियम है वो कैथोड की तरफ जाएगा, यानी वो स्टील के जो स्टील टैंक के अंदर जो ग्राफाइट लाइनिंग है उसकी तरफ जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, मोल्टन एल्यूमिनियम बीइंग heavier than the electrolyte is collected at the bottom of the tank. So जो मोल्टन एल्यूमिनियम है जो यहाँ पे ग्राफाइट में कलेक्ट हो रहा है वो काफी हेवी है। वो हेवी होने की वजह से वो नीचे आ जाता है। ओके, it is taken out from there from time to time and oxygen gas is liberated at the anode. Okay, so यहाँ पे क्योंकि मोल्टन एल्यूमिनियम जो कैथोड की तरफ जा रहा है वो काफी हेवी होता है, वो नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही नीचे आता है यहाँ पे हमारे पास आउटलेट है। ओके, आउटलेट फॉर मोल्टन एल्यूमिनियम, ये नीचे से निकाल दोगे तुम। ओके, निकाल के तुम्हें एल्यूमिनियम मिल जाएगा। वेरएस देखो ये एल्यूमिना है, राइट? एल्यूमिना, एल्यूमिना में Al2O3। तो एल्यूमिनियम 3+ है तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले गया, यानी ये ग्राफाइट जो है उसकी तरफ चला गया क्योंकि वो नेगेटिव पार्ट है। वेरस बचा क्या? दूसरा पार्ट Al2O3, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रेडिकल क्या है? 2-। 2- यानी एनआईएन है वो। एनआईएन हमेशा एनोड की तरफ जाएगा क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन एनोड की तरफ जाएगा और एल्यूमिनियम कैथोड नीचे की तरफ जाएगा। सो एनोड्स पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगा। ओके, और फाइनली तुम्हें नीचे, ये सब हमने क्यों किया था? एल्यूमिनियम मिलने के लिए, राइट? तो एल्यूमिनियम मिल गया कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस से। ओके, so these are the reactions at the electrodes. Okay, so first let us look at the anode reaction. So anode के पास anion जाएगा, anion is oxygen. Okay, so oxygen का radical क्या है? 2-। okay, so 2- यानी दो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, दो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है तो उसको दो इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। बट ऑक्सीजन इज अ गैस, बराबर? तो हमेशा सिंगल एटम नहीं होगा, हमेशा दो दो एटम साथ में होंगे। सो देयर विल बी टू ऑक्सीजन anions that will come together and give a total 4 electrons। 4 electrons कैसे आ गए? एक ऑक्सीजन एनायन के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक ऑक्सीजन का एनायन दो इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे ऑक्सीजन का एनायन दो इलेक्ट्रॉन देगा। सो दो इलेक्ट्रॉन प्लस दो इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो 2 ऑक्सीजन एनायंस विल बिकम O2 न्यूट्रल, zero charge, and it will give away 4 electrons. Okay, it is giving away electrons, releasing electrons, losing electrons. Whenever you lose electrons it is known as oxidation. So anode पे oxidation reaction हो जाएगा। Similarly cathode, cathode पे aluminium, what is the radical of aluminium? 3+। So it has 3+ charge। 3+ को तुम्हें 3- करना है। 3- कैसे करोगे? By giving 3 electrons। So Al3+ is going to take 3 electrons and will become neutral Al, which is the metal that we needed। So this is the reduction। यहाँ पे liquid क्यों लिखा है? क्योंकि molten state में, राइट? इसलिए इसको liquid लिखा है। ओके, सो एल्यूमिनियम जनरली सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड लिखा है क्योंकि मोल्टन एल्यूमिनियम है। ओके, सो दीज आर द रिएक्शंस एट द इलेक्ट्रोड्स। Final point in this topic is the liberated oxygen reacts with the anodes to form carbon dioxide। ग्राफाइट किससे बना है? ग्राफाइट कार्बन से बनता है, बराबर? सो ग्राफाइट पे जब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है सो ऑक्सीजन प्लस कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। ओके, सो ये जो एनोड है बार बार खराब होते रहेगा। जैसे ही ऑक्सीजन आएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उड़ जाएगा, तो एनोड जल्दी जल्दी खराब होते जाएगा। Hence, the anodes have to be changed from time to time as they get oxidized during the electrolysis of alumina। Okay, यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन होने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बराबर? ऑक्सीडेशन हैज मेनी डेफिनेशंस। वन ऑफ द डेफिनेशंस इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। सो ये जो ग्राफाइट में कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो खत्म होने लग जाता है। ओके, डिप्लीट होने लगता है। तो पहले ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो धीरे धीरे जो एनोड्स है ग्राफाइट के खराब होने लग जाते हैं तो उसको चेंज करना पड़ता है।
हर हर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको चेंज करना पड़ता है. ओके, सो देयर इज अ गिव रीजन, आई थिंक give reason why anodes have to be changed from time to time in electrolytic reduction of alumina. So ये दो points लिख दिया तो भी काफी है. Okay, so that's your electrolytic reduction of alumina. So end में तुम्हें क्या मिला? Aluminum मिला. So you begin with the ore. ore में impurities थे, तो impurities को तुमने लीचिंग से निकाला. उसके दो ऑप्शन थे, बियर्स प्रोसेस या फिर हॉल्स प्रोसेस. फिर उसके बाद तुम्हें एल्यूमिना मिला. एल्यूमिना को तुम लोग रिड्यूस कर रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस से और तुम्हें एल्यूमिनियम मिलेगा. ओके, सो एंड में तुम्हें एल्यूमिनियम मिल जाएगा. ओके, so here I have summarized the entire process in one particular table. Okay, starting में तुम्हारे पास बॉक्साइट है और जिसमें एल्यूमिनियम है. दिस इज सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका बोलते हैं इसको. दिस इज फेरस ऑक्साइड, दिस इज टाइटेनियम ऑक्साइड. ओके, तो ये सब इम्प्यूरिटीज है. तो तुम लीचिंग करोगे, लीचिंग के दो ऑप्शन है, बेयर्स मेथड से लीच कर सकते हो या फिर हॉल्स मेथड से. बेयर्स मेथड से अगर लीच करोगे सो ओर प्लस कॉस्टिक एसिड. What is caustic acid? Sodium hydroxide. Okay, उसमें लीच कर दो. टेम्परेचर विल बी अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस. हाई प्रेशर होगा और यू विल डू दैट फॉर 2 to 8 आवर्स. तो तुम्हें क्या मिलेगा? सोडियम एल्यूमिनेट. दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट. फिर सोडियम एल्यूमिनेट में तुम उसको डाइल्यूट कर दो पानी में डाल के, तो तुम्हें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा. द सेम थिंग कैन ऑल्सो बी अचीव्ड यूजिंग हॉल मेथड्स. हॉल मेथड्स में तुम और प्लस सोडियम कार्बोनेट डाल दोगे. यहाँ पे कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, बट यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डाल दोगे. सेम चीज मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट. ओके, बट सोडियम एल्यूमिनेट को यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट करने के लिए वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से तुम न्यूट्रलाइज कर दोगे उसको. ओके, दैट्स द डिफरेंस ओवर हियर. दोनों से तुम्हें एंड में क्या मिलने वाला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को तुम कैल्सिनेट करो 1000 डिग्री सेल्सियस पे एंड यू गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज कॉल्ड एज एल्यूमिना. सो दिस इज एल्यूमिना. अभी एल्यूमिना में से एल्यूमिनियम निकालने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है. ओके, सो इलेक्ट्रोलिसिस में करते समय एल्यूमिना में क्या क्या ऐड कर दो? NaAlF3, दिस इज क्रायोलाइट एंड CaF2 विच इज फ्लोरस्पार. सो क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार तुम ऐड करोगे, जिससे मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. फिर इलेक्ट्रोलिसिस में जब वो करंट पास हो जाएगा तो तुम्हें एल्यूमिनियम मिल जाएगा. एल्यूमिनियम इज पॉजिटिव, उसका रेडिकल 3+ होता है विच मीन इससे कैटायन. सो कैटायन कैथोड की तरफ मूव करे और कैथोड पे तुम्हें एल्यूमिनियम मिल जाएगा. एल्यूमिनियम का वेट ज्यादा होता है मोल्टन एल्यूमिनियम का, तो नीचे आ जाएगा. नीचे आने से तुम नीचे वाले एक डक्ट में से उस मोल्टन एल्यूमिनियम को निकाल दोगे. बचा क्या? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ग्राफाइट के एनोड्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा. ओके, सो दैट्स हाउ यू गेट एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ore which is bauxite. Okay, so even if you by heart this particular table very well, you should be able to summarize the entire process easily. Okay, you can copy this and make sure you're by hearting this first and then इसको याद करके तुम पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो. Okay, so that is it for this learning session. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Can you explain me the entire process of extraction of aluminium? और कैसे एक्सप्लेन करना है? जितने भी डायग्राम्स लगेंगे वो डायग्राम को यूज करके, जितने भी रिएक्शंस है वो रिएक्शंस को यूज करके, can you explain me the process of extraction of aluminium? If yes, then you have achieved today's learning objective. If not, maybe you need to read the textbook again, maybe you need to sit and by heart the table again, maybe you need to watch this video again. Do whatever it takes to achieve this learning objective. It's an important learning objective. Generally Bayes process पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एल्यूमिनियम का जो पूरा प्रोसेस है उस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल कैल्सिनेशन पे टेम्परेचर कितना करते हैं, या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए कौन सी दो चीजें ऐड करते हैं. सो मेनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैन आल्सो कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. मेक श्योर यू आर working very hard to achieve this learning objective. Okay, so that is it for this learning session. I hope you had fun learning this. I have fun whenever I learn about long processes. पूरा का पूरा जो प्रोसेस है मेरे दिमाग में वो स्टोरी की तरह होता है. पहले फर्स्ट इंसिडेंट, सेकंड इंसिडेंट, थर्ड इंसिडेंट, so on and so forth. Okay, so मेरे लिए वो एक स्टोरी की तरह होता है. So I hope you all are also able to by heart this entire process by thinking it like a story. Okay, so that is it for this learning session. I hope you understood most of it and we'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.